نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 57 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنا، اس پر سخت قسم کی پابندی عائد فرما دی۔ آج کے سبق میں دوبارہ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، خواہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی نصرانی، یا وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، تم ان لوگوں کو اپنے دوست مت بناؤ۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اگر تمہارا اللہ کی ذات پر مکمل ایمان و یقین ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی رہتا تھا، نصرانی یعنی عیسائی تھا۔ اس کو اذان سننے سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ وہ طرح طرح کی بکواس کرتا تھا، اور اذان کے کلمات میں جب وہ سنتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتا احرق اللہ الکاذب، اللہ تعالیٰ جھوٹے بندے کو جلا دے۔ اب جھوٹا تو وہ خود تھا، لیکن اس کی عقل پر پردہ تھا۔ اب یہ کلمہ اسی کے اوپر ہی پورا ہو گیا۔ ایک رات میں اس کا نوکر آگ لے کر آیا گھر میں کسی ضرورت کے لیے۔ کوئی چنگاری اڑ کر گھر کے کسی کونے میں گر گئی۔ جب سب سو گئے تو وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور اس نے پورے گھر کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ خاندان بھی جل گیا سارا، خود بھی جل گیا، اور ساز و سامان سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر علاج فرمایا کہ جو دین حق کا یا اللہ کی شعائر میں سے کسی کا بھی مذاق اڑاتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الذین اتخذوا، ان لوگوں کو جو بناتے ہیں، دینکم، تمہارے دین کا، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے،
اوتو کا لفظی معنی ہوتا ہے دی گئی، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارا اور کافروں کو، اولیاء دوست۔ اے ایمان والو تم دوست مت بناؤ، کن کو؟ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تمہارے دین کو کھیل سمجھیں، اہل کتاب میں سے ہوں جو تم سے پہلے ہیں، یا دیگر کوئی کافر ہوں جیسے مکے کے مشرک وغیرہ، تم ان کو دوست مت بناؤ۔ ہر ایسا بندہ جو دین میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑاتا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دین کے اندر رہتے ہوئے مذاق اڑائے تب بھی، دین سے باہر نکل کر مذاق اڑائے تب بھی۔ اس سے خطرہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی اس پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑنے کا خطرہ ہے جو اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے رکھے ہوئے۔ بہت سے لوگ پردے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، بہت سے لوگ داڑھی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کوئی زبان سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی عمل کے ذریعے سے مذاق اڑاتا ہے اور داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ اب داڑھی رکھنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب جو اس کا مذاق اڑائے گا آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ مذاق اڑانا کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک کے اندر ایسے بندے سے دوستی رکھنے سے منع کر دیا، ان کے ساتھ تعلقات مت قائم کرو، یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ نے عبرت کے طور پر مدینہ طیبہ میں رہنے والے ایک نصرانی کو جلا کر خاک بنا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا ان کا یہی حشر ہوگا۔ ایک بندہ دین پر عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہے، لیکن ایک بندہ عمل بھی نہیں کر رہا اور جو عمل کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کبھی کسی کی پگڑی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا دیا، کبھی کسی کی داڑھی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا دیا۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو مذاق اڑانے والے وہ گناہ گار تو ہیں، لیکن ان مذاق اڑانے والوں کو آگے شیئر کرنے والے، جس طرح آج واٹس ایپ کا زمانہ، فیس بک اور دیگر دوسری چیزیں، ان کو آگے شیئر کرنے والے مذاق کو، یہ لوگ بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ یہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن پاک سے دور ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ کہیں قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلاں کافر ملک نے کارٹون بنا دیے، فلاں نے یہ کر دیا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا خون کھولتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو دیکھو ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہماری خود حالت کیا ہے۔ اور اسی کے اندر ہی جو فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں گزشتہ پیغمبروں کے اوپر یا اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا دیگر نیک لوگوں کے اوپر، وہ سب ڈرامے دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی، یہ کیا مسلمان بنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ کافر لوگ بنا رہے ہیں اور وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تم ان کو بار بار دیکھ رہے ہو۔ کس لیے؟ کہ ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا پچھلے قصص کو
और वाक़यात को समझने के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह ने कुरान पाक और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तालीमात देने की कोशिश की, उलमा को भेजा, हमें तालीमात देने की कोशिश की। हमने उलमा की बात को सुनना भी छोड़ दिया, कुरान पाक को भी छोड़ दिया, अहादीस नबविया को भी छोड़ दिया और लेके बैठ गए मोबाइल। अब उसके अंदर कौन सा ड्रामा आ रहा है, कौन सा फिल्म, अंग्रेज़ मुझे कुरान कैसे समझा रहा है, अंग्रेज कैसे बता रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे थे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सब लोग जो इस काम को करते हैं वो भी, और जो लोग इन कामों किए हुओं को देखते हैं वो सब बराबर के मुजरिम हैं। मजाक नहीं तो और क्या है। अल्लाह ने बिल्कुल मना कर दिया इस आयत मुबारका के अंदर। ऐसे बंदे जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीन को खेल और तमाशा बनाते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम ऐसे बंदों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। देखें कितना सख्त जुमला है, इससे तो तुम्हारे ईमान के ऊपर ज़रब आ रही है। सोचो तो सही तुम क्या काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा वाकई अल्लाह की ज़ात पर ईमान है तो डरो अल्लाह से, क्या काम कर रहे हो तुम। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़वन व लइबा, और जब तुम पुकारते हो नमाज के लिए, इत्तखज़ूहा, वो बनाते हैं हुज़ुवा, मजाक, व लइबा, और खेल बनाते हैं, खेल और तमाशा। आज़ान को भी खेल बनाते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये इस वजह से कि ये ऐसी कौम है जिनको अक्ल ही कोई नहीं। अज़ान का मजाक उड़ाना या दीन इस्लाम के दीगर शायर का मजाक उड़ाना, ये बेअक्ली है, ये कुरान पाक बता रहा है। ये अक्लमंद होने की निशानी नहीं है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक और बात को ज़िक्र फरमाया। कुछ यहूदी उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप ये बताइए कि आपसे पहले जितने भी नबी गुज़रे हैं, आप उनमें से किन किन को मानते हैं, किन को नहीं मानते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों को मानता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानता हूँ। कहने लगे, अच्छा आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माने हम उसको भी नबी नहीं मानते। ये यहूदी उलमा कहने लगे। अल्लाह ताला ने उस मौके पर कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। कुल, फरमा दीजिए, या अहलल किताब, अहले किताब, हल तनक़िमूना, क्या तुम जिद रखते हो, मिन्ना, हमसे, इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि, मगर ये कि हम ईमान लाए अल्लाह की ज़ात पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और उस किताब पर जो नाज़िल की गई हमारे ऊपर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु, और उन किताबों पर जो नाज़िल की गई पहले, व अन्न अक्सरकुम फ़ासिकून, और बेशक तुम में से अक्सर नाफरमान लोग हैं। हमारा सिर्फ कसूर क्या है कि हमने सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम को माना। हमारा कसूर क्या है, हमने तमाम आसमानी किताबों को माना, और इसका नतीजा क्या है कि हमारे ऊपर ऐब लगा दिया गया और हमारे साथ ज़िद रख के हमें भी झूठा करार दे दिया गया। कुल, फरमा दीजिए, हल उनब्बिउकुम, अब ये यहूदी उलमा जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता हूँ, अल्लाह का रसूल मानता हूँ, उन्होंने इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दे दिया, नाउज़ुबिल्लाह। अब एक तरफ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, अब इसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दे दिया। और दूसरी तरफ अपने करतूत क्या हैं, अल्लाह ताला अगली आयत मुबारका में उनको ज़ाहिर फरमा रहे हैं कि पहले अपने आप को देखो, अपने जुर्मों को देखो और देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, इन्होंने क्या फरमाया है और इनके किस बात को लेकर तुमने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और ख़ुद अपने आप को देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। लेकिन अंदाज़े बयान क्या था, सुबहान अल्लाह। वो सामने बैठे हैं यहूदी उलमा सारे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, और नाज़िल फरमा कर कहना तो यही चाहिए था कि ऐ यहूदियों, तुम ही हो जिन्हें अल्लाह ने गलतियों की बिना पर, गुनाहों की पकड़ की बिना पर अल्लाह ने कभी बंदर बना दिया था, अल्लाह ने कभी खिंजीर बना दिया था, अल्लाह ने कभी सूअर बना दिया था, और आज तुम हमें कहने के लिए आ गए हो कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। तुम पहले अपने आप को तो चेक करो, अपनी तारीख और अपनी हिस्ट्री देखो कि तुम कौन हो। लेकिन अल्लाह ताला ने अंदाज़े बयान क्या इख्तियार फरमाया और हमें समझा दिया कि देखो, जब भी फरीक मुखालिफ सामने बैठा है और तुमने उसके बारे में बात करनी है, तो ऐसे बात नहीं करनी कि उसके मुंह पे उसी वक्त चपेड़े मारनी शुरू कर दो, थप्पड़ मारो उसके मुंह पे। ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है। ये अल्लाह ताला ने खुद भी इख्तियार नहीं फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदी बैठे हैं और वो जुटला रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा। अल्लाह ने उस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तालीमात दी, ज़रा सुन के देखिए। कुल, आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, आप इन यहूदी उलमा को फरमा दीजिए, हल उनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर्रिम मिन ज़ालिका, इससे भी बुरी चीज़, मसूबतन, जज़ा के एतबार से, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि उन्होंने ये बुराई नोट करके दिखाई ना कि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कैसे मान लिया, लिहाजा हम तुम्हें नबी नहीं मानते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको कहें, क्या मैं तुम्हें इससे भी बुरी चीज़ बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक जज़ा के एतबार से इससे भी बदतर है। मल्लानहुल्लाहु, वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह की लानत हुई, वग़ज़िबा अलैहि, और अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ उन पर, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीरा, और बना दिया मिनहुम, बाज़ों को उनमें से, क़िरदता, बंदर, वल ख़नाज़ीरा, और बाज़ों को सूअर बना दिया, व अब्दत तागूत, और जिन्होंने शैतान की बंदगी की। उलाइका शर्रुम मकानन, ये वही लोग हैं जो बदतरीन हैं, मकानन, जगह के एतबार से, दर्जे के एतबार से, व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, और ये बहके हुए हैं सीधे रास्ते से। हालांकि वही मुजरिम सामने बैठे थे, ये वही नस्ल थे, इन्हीं के आबाओ अजदाद थे जिनसे ये गलतियां हुई, और अल्लाह ने उनके ऊपर लानत की, और अल्लाह का गुस्सा उन पर आया, और अल्लाह ने उनको बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, और ये शैतान की बंदगी करने वाले थे। और उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका शर्रुम मकाना, इनके लिए जो जगह का इंतखाब वो बड़ी बदतरीन है, जहन्नम। ज़ाहिर है इससे बदतरीन और क्या जगह हो सकती। और सीधे रास्ते से ये भटक गए थे। ये अंदाज अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि किसी के मुंह के ऊपर ऐसी बातें करोगे तो सिवाय लड़ाई के और कुछ नहीं होगा। इसलिए समझाना भी उनको था कि भाई देखो, तुम अपनी गलतियों को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां पाई गईं, और अपने आप को बहुत नेकोकार और दरवेश समझ के बैठे हुए हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को लेकर तुमने उछाल दिया, और वो भी सही बात, वो भी ईमान वाली बात, वो भी अल्लाह को राज़ी करने वाली बात, उसको लेकर तुमने बना दिया कि हम तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का हाल बयान फरमाया। वो लोग जो काफिर हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं और आकर कहते हैं हम ईमान ले आए। अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं ईमान ले आए, जैसे आए थे वैसे चले गए। काफिर ही आए थे
और काफिर ही वापस लौट गए। वइज़ा जाऊकुम, और जब ये आते हैं तुम्हारे पास, क़ालू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए, वक़द दख़लो बिलकुफ्री, हालांकि ये दाखिल हुए बिलकुफ्री, कुफ्र की हालत में, वहुम कद खरजू बिही, और वो उसी हालत में थे, कद खरजू बिही, जब यहाँ से निकले। कुफ्र पर ही दाखिल हुए थे और कुफ्र की हालत में यहाँ से निकले। वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून, अल्लाह खूब जानता है उनको जो ये छुपाते हैं। अल्लाह ताला को तो सब मालूम है कि ये क्या छुपा रहे हैं। दिल के अंदर कुफ्र छुपा कर बैठे हुए, अल्लाह ताला को मालूम है सारा। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की हालत बयान फरमाई कि मुनाफिक ईमान नहीं लाते, बल्कि ज़ुबान से ईमान का इकरार करते हैं, दिल से नहीं लाते। अब जैसे ये कुफ्र की हालत में तुम्हारी मजलिस में आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये पक्के काफिर। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान, वतरा, और आप देखेंगे, कसीरन, बहुत से लोगों को, मिनहुम, इनमें से, युसारिऊन, जो दौड़ते हैं, फिल इस्मि, गुनाहों में, वल उद्वान, और जुल्म में। दौड़ने का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने पीछे भी जिक्र फरमाया और यहाँ दोबारा फिर उसको जिक्र फरमाया। इसका मतलब ये है कि गुनाहों के अंदर दौड़ दौड़ कर गिरना, जुल्म के अंदर दौड़ दौड़ कर गिरना, इसका मतलब यह है कि जब एक आदमी गुनाहों का आदी मुजरिम बन जाता है, जुल्म का आदी मुजरिम बन जाता है, फिर वो गुनाह और वो जुल्म उसकी तबीयत बन जाती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उसके हाथों से होते चले जाते। तो जब उसके हाथों से होते चले जाते हैं, तो अब हर आन में, हर घड़ी में, हर लम्हे में ये जहन्नम के अंदर अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं, कुफर के अंदर अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं, गुनाहों की दलदल में अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कबूल फरमा लिया और नेक अमाल करना उनकी तबीयत बन गई। वो हर आन में, हर घड़ी में, युसारिऊन फिल खैरात, वो नेकी के मामले में दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर नेकी में के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। अब दोनों गिरोह हमारे सामने आ गए। एक कुफर के अंदर दौड़ रहे हैं, उनकी तबीयत गुनाहों की बन गई और वो हमेशा कुफर के अंदर ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग नेक अमाल, उनकी तबीयत बन गई, वो नेक अमाल के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारे अहवाल सुनाकर हमें सबक दिया जा रहा है कि तुम्हारे सामने भी दो किस्म के लोगों का तज़किरा आ गया, तुम अपने आप को काउंट करो कि तुम कहाँ खड़े हो। क्या गुनाह करना तुम्हारी तबीयत तो नहीं बन चुकी? क्या नेक अमाल करना तुम्हारी तबीयत बन चुकी है? फिर तो मुबारक है कि हर आन में, हर लम्हे में, तुम्हारा हर उठने वाला कदम, हर आने वाला सांस तुम्हें जन्नत के करीब लेकर जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता गुनाह तुम्हारी तबीयत बन चुकी है कि हर मौके पर, हर आने वाले वक़्त में गुनाहों के करीब से करीब होते जा रहे हो और गुनाहों के अंदर दौड़ते जा रहे हो, तो फिर जहन्नम के अंदर अपने आप को गिरा रहे हो, जहन्नम के करीब होते जा रहे हो। वतरा कसीरम मिनहुम, और आप देखेंगे कसीरन, बहुत से लोगों को, मिनहुम, इनमें से, युसारिऊन, ये यहूदियों के हालात हैं कि अक्सर यहूदी ऐसे हैं जो अपने आप को कुफर के अंदर गिरा रहे हैं। बहुत कम लोग यहूदियों में ऐसे हैं जो ईमान लेकर आए। युसारिऊन, वो दौड़ते हैं, फिल इसमें, गुनाहों में, वल उद्वान, और जुल्म में, व अक्लिहिम वस्सुहत, और
हराम खाने में। लबिअस मा कानू यामलून, बुरे हैं जो वो आमाल करते हैं। एक तरफ तो ये करने वाले लोग हैं, बुरे आमाल कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, गुनाहों की दलदल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेक लोग बैठे हैं, उलमा हैं, दरवेश हैं, उनको अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, लौला यन्हाहुमुर रब्बानियून, लौला यन्हाहुम, क्यों नहीं रोका इनको, क्यों नहीं मना करते इनको, अर्रब्बानियून, रब वाले, अल्लाह वाले, दरवेश लोग, पीरो मुर्शिद लोग, इनको मना क्यों नहीं करते। वल अहबारो, और उलमा लोग, अन कौलिहिम, इनकी बात से, अल इस्मा, गुनाह वाले, गुनाहों वाली बातों से इनको मना क्यों नहीं करते। व अक्लिहिमुस सुहत, और हराम खोरी से इनको मना क्यों नहीं करते। लबिअस मा कानू यस्नाऊन, ये बहुत बुरा है जो ये अमल कर रहे हैं। कौन? ये जो दरवेश लोग और उलमा गुनाहों की बात को देखकर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, ये बहुत बुरा अमल कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके अंदर उलमा भी हैं, दरवेश लोग भी हैं, और हर ऐसा बंदा जिसको इल्म है कि ये गुनाह है और इसकी सज़ा ये है, और उसको अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो नेक अमाल करता है, उसके ज़िम्मेदारी है कि उसके सामने अगर कोई गुनाह की बात होती है तो वो उसको रोके, मना करे। लेकिन उसके 3 स्टेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। पहला स्टेज, अगर तुम कोई बुराई की बात देखो अपने हाथ से रोक दो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है कि अगर हाथ से रोको तो लड़ाई का खतरा है, या तुम्हारी पावर नहीं है, तो फिर ज़ुबान से रोक दो। अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, फिर अपने दिल से उसको बुरा समझो, यार ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं, मेरे अंदर पावर होती, ताकत होती तो मैं इनको रोक देता। अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश पूरी करनी है, तब बरी होंगे। अगर नहीं कोशिश की तो नतीजा क्या होगा, इसको भी ज़रा सुन लीजिए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, एक जगह पर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, फ़लाँ बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि इस बस्ती में आपका फ़लाँ इबादत गुजार बंदा मौजूद है, हुक्म हुआ इसको भी अज़ाब का मज़ा चिखाओ और इसको भी तबाह कर दो, क्योंकि हमारी नाफरमानियों को और गुनाहों को देखकर इसको कभी गुस्सा नहीं आया और इसका चेहरा गुस्से से कभी मुतगय्यर नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इंतकाल फरमा गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे हज़रत यूशा बिन नून। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने इनको नबी बनाया। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके पास अल्लाह ताला ने एक मरतबा वही भेजी कि ऐ यूशा, हम आपकी कौम के 1 लाख आदमियों को अजाब से हलाक करने लगे हैं, जिनमें 40,000 नेक लोग हैं और 60,000 बदकार बदअमल लोग, गुनाहगार लोग हैं। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जो बदकार बदअमल हैं उनको तो गुनाहगारी की वजह से हलाकत की समझ आती है, लेकिन ये जो नेकोकार हैं इनको क्यों हलाक किया जा रहा है। इरशाद हुआ, ये नेक लोग इन बद किरदारों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, इनके साथ खाने पीने में, हंसी में, दिल लगी में शरीक हुआ करते थे।
मेरी नाफरमानियाँ और गुनाह को देखकर कभी इनके चेहरों पर नागवारी का असर तक नहीं आया था, इसलिए आज जब अजाब आएगा इनको भी साथ ही हलाक कर दिया जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे दोस्तों में, हमारे मिलने वालों में, हमारे साथ उठने बैठने वालों में, हमारे रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारब में, अगर हम देखते हैं कि ये कोई गुनाह की बात है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही, तो 3 स्टेज मैंने अर्ज़ कर दिए, इसके मुताबिक अमल करना होगा। अगर नहीं करते तो जो जुर्म वो लोग कर रहे हैं उसी के अंदर बराबर के हम भी शरीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।